Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Numan Limited issued 80,000 equity shares which were underwritten as follows. So, Noman Limited had 80,000 equity shares which will Mr. A was given the responsibility to underwrite 48,000 equity share, Mrs. B and company 20,000 equity shares, and Mrs. C corporation 12,000 equity shares was the responsibility given to individual underwriter. So when we add 48 plus 20 plus 12, how much do you get? Just check. How much do you get? Are you getting 80,000? 48,000 plus 20,000 plus 12,000 will give us 80,000. So the responsibility of underwriting of 80,000 shares is distributed among the three underwriters. The above mentioned underwriters made applications for firm underwriting as follows. So how much is the firm underwriting of each individual? That irrespective of the number of applications, each underwriter has the responsibility. Mr. A has the responsibility to purchase 6,400 equity share. Mrs. B and company 8,000 equity shares, and Mrs. C corporation 2,400 equity shares. So the total applications excluding firm underwriting but including marked applications were for 40,000 equity shares. So marked application firm underwriting को exclude करके the total applications excluding firm underwriting but including marked applications were for 40,000 equity shares. So marked applications को include करते हैं but firm underwriting included नहीं है इसमें. It is the उसको बोलते हैं total was 40,000 equity shares. So the marked applications were as under Mr. A का 8,000, Mr. B का Mrs. B and company का 10,000, Mrs. C 4,000. So 10 plus 8 plus 4 is how much? 22,000. So marked applications total are 22,000. Marked application total 22,000. So and the remaining 40,000 में अगर marked application 22 है तो unmarked 18 हो जाएगा because this total application excluding firm underwriting, a line above, total applications excluding firm underwriting but including marked applications were 40,000 equity shares. So इसमें अगर मार्क्ड एप्लीकेशन तीनों को ऐड किया तो कमिंग टू 22,000, तो 40,000 माइनस 22,000, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस विल बी 18,000. The underwriting contracts provide that underwriters be given credit for firm applications and that credit for unmarked applications be given in the proportion of the shares underwritten. तो वो 18,000 को कैसे डिवाइड करना है? जैसे शेयर्स अंडरराइट हुआ है ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में, and then what we will do, and then they say firm under applications का क्रेडिट इंडिविजुअल अंडरराइटर को मिलने वाला है. फर्म अंडरराइटिंग का क्रेडिट जब इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को मिलता है तो हम फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं. जब भी क्रेडिट मिलता है दैट इज अवर मेथड 2. So I will show you again method
second method, देखो, the benefit of firm underwriting is given to individual underwriter. It is second method जिसमें हम क्या करते हैं, फर्म अंडरराइटिंग को नॉट ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन. जब इंडिविजुअल अंडरराइटर को क्रेडिट नहीं मिलता तो वी ट्रीट द फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स as unmarked applications. यहाँ पे we will not treat as unmarked application but we will treat as marked application. तो क्या करते हैं ये सिचुएशन में, पहले फर्म अंडरराइटिंग को डिडक्ट करते हैं और लास्ट में ऐड करते हैं. पहले लेस करते हैं फिर ऐड करते हैं. Not treated as unmarked when individual underwriter is given the credit of benefit of firm underwriting. पहले firm underwriting को लेस करेंगे फिर लास्ट में ऐड करेंगे. So this will be our method when benefit is given. So you are required to show the allocation of liability. Working will be considered as a part of your answer. So we'll have to find out the liability of, we will have to find out the liability of underwriters. What we will do, we will find out the liability of underwriters. Liability of underwriters. So let us, how many underwriters are there? 3. So particulars के लिए हमें कॉलम चाहिए, बेसिस के लिए चाहिए और 3 अंडरराइटर्स है उसके लिए चाहिए. फिर टोटल कॉलम भी चाहिए तो वो भी बना सकते हैं. So here particulars and then basis A, B and company. B and company is there. And then we have C and corporation. C corporation. And we have total. What is the first step? We will write the gross liability. ये तो गिवन है ना, कैसे करना है. The number of underwriter is given. Gross liability 48 is to 48,000, 20,000, 12,000, 80,000 total होता है. So A will underwrite 48,000, B will underwrite 20,000 and C will do underwrite 12,000, total coming to 80,000. What is the ratio? What will be the ratio? 48 is to 12. Sorry, 48 is to 20 is to 12. इसको छोटा भी कर सकते हैं. तो 2 के टेबल में दिस ऑल कम्स कितना, ये 2 के टेबल में 48 is 24 are and 20 is 10 are and 12 is 6 are. If you don't want to less it, you don't do. And if you want, you can और कम कर सकते हैं. This is coming as 2 12s are. This is coming as 2 5s are. And this is coming as 3s are. So this is the final ratio. इसके बाद हम और छोटा नहीं कर सकते. अब क्या करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी में से we will deduct marked applications. This is given. कैसे क्या कौन से रेशो में डिवाइड करना इज गिवन. सो मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है, 8,000, 10,000, 4,000. 8,000,
10,000 and 4,000. So ये less करते, so we should show in the bracket. So how much are we getting? 8,010. This is coming to 22,000. Correct? So मिलेगा हमें बैलेंस, लेस करने पे मिलेगा बैलेंस. सो 48 माइनस 8, 20 माइनस 10, 12 माइनस 4, ऐड करो, हाउ मच यू विल गेट? 58,000, या तो 80,000 माइनस 22,000 is also coming to 58,000. Now what we will do? Less unmarked application. इसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करना है. 12:5:3. But how much is the unmarked application? Unmarked application working note में we will show unmarked applications is equal to, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला है देखो total application excluding firm underwriting but including marked application where 40,000. firm underwriting included नहीं है ये total 40,000. it is total application excluding firm underwriting उसमें से हम माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस बिकॉज उसमें मार्क्ड एप्लीकेशंस इंक्लूडेड, बट इंक्लूडिंग चाहिए तो ये पूरा लिख देती हूँ मैं, बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस. सो ये जो हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस थे जिसमें मार्क्ड फर्म अंडरराइटिंग एक्सक्लूडेड था बट इंक्लूडिंग ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशंस दैट इज 40,000. सो वो 40,000 में हमें पता है हाउ मच इज मार्क्ड एप्लीकेशन. 22,000. मार्क्ड एप्लीकेशन इज 22,000. So how much we get unmarked? 18,000. So ये unmarked 18,000 है. तो यहाँ पे उसको डिवाइड करो 12:5:3 रेशो में. 12 + 5 + 3 is how much? 20. So 18,000 into 12 divided by 20, it is coming 10,800. फिर 18,000 into 5 divided by 20. 18,000 into 5 divided by 20. You are getting 4,500. Same way 18,000 into 3 divided by 20. You are getting 2,700. सो हमने अनमार्क्ड एप्लीकेशन को भी माइनस कर दिया. अभी हमें क्या करना है, हमें अभी मिलेगा बैलेंस. तो बैलेंस कितना है, ये हो जाएगा 29,200. 10,000 minus 4,500 is 5,500. 8,000 minus 2,700 is 5,300. Now we get 58 minus 18 is 40. So अब क्योंकि हम
form under the contract says that underwriters be given credit for form application. form application का credit मिलने वाला है तो पहले less करना है form underwriting को. पहले फॉर्म अंडर राइटिंग को लेस करना है. फॉर्म अंडर राइटिंग को लेस करने के लिए उसका रेशियो ऑलरेडी फॉर्म अंडर राइटिंग गिवन है 6,400, 8,000 and 2,400. See here they have given the firm underwriting are as follows. Firm underwriting is given 6,400, 8,000 and 2,400. So this is given. तो कितना है ये 6,400 लेस करना है. फिर हाउ मच इज फॉर बी एन कंपनी इट इज 8,000. सी एन कंपनी इज 2,400. तीनों को ऐड करो. टोटल फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है ऐड करो 16,800. 6,400 प्लस 8,000 प्लस 2,400. तो अभी हमें क्या मिलेगा फिर से वी विल गेट द बैलेंस. हाउ मच इज द बैलेंस माइनस करो. यू गॉट 22,800. 5,500 माइनस 8,000 minus 2,500. Here you will get 2,900. फिर लास्ट में टोटल जो है वो रहेगा 40,000 माइनस 16,800 इज इक्वल टू 23,200. दोनों को ए और सी का ऐड करो. बी का नेगेटिव है माइनस करो तो भी सेम आंसर आएगा 23,200. आई एम सॉरी. सो नाउ हमें क्या करना है ये बैलेंस आया. ये बैलेंस में एक का नेगेटिव है तो उसका क्रेडिट को एडजस्ट करना पड़ेगा. क्रेडिट ऑफ बी एडजस्टेड बिकॉज देखो बी का नेगेटिव आ रहा है तो रेशो क्या रहेगा बी का छोड़ के 12:3 रेशो में डिवाइड करो. 12:3 रेशो में डिवाइड करो. 2,500 इंटू 12 डिवाइड बाई 15. 15 कैसे आया 12 प्लस 3 तो 12 डिवाइड बाई 15 हमें 2,000 आ रहा है. चेक इन योर कैलसी एवरीवन. और यहाँ पे सेम अमाउंट लिखेंगे तो प्लस माइनस इट विल गेट कैंसल्ड एंड 2,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 15 हमें मिलेगा 500. सो यहाँ पे तो नील होगा. क्रेडिट एडजस्ट करेंगे इधर का प्लस है इधर दोनों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव. ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव विल गिव अ 0. सो क्रेडिट एडजस्टेड का टोटल में कोई कुछ नहीं आता. फिर ये करने के बाद अगेन हमें बैलेंस मिल जाएगा. कितना आया 22,800 में से 2,000 माइनस किया तो 2,800. इधर कितना आ जाएगा नील आ जाएगा. और इधर कितना आ जाएगा 2,400. इधर कितना आ जाएगा सेम अमाउंट विल कम बिकॉज 23,200 माइनस नील इज सेम. तो अभी लास्ट मैंने क्या बोला था पहले जब बेनिफिट मिलता है अंडर राइटर को तो पहले लेस करते हैं. फिर क्या करते हैं लेस करने के बाद लास्ट में ऐड करते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग को. पहले लेस करते हैं फिर बाद में ऐड करते हैं फॉर्म अंडर राइटिंग. सो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है दैट इज गिवन. हाउ मच इट इज 6,400, 8,000 and last का it is 2,400.
तो टोटल कितना है 16,800। तो कितना आज जो मिलेगा उसको बोलेंगे नेट लाइबिलिटी। एंड ऐड करो कितना आ रहा है 27,200, 8,000 एंड लास्ट वन इज 4,800। सबको ऐड किया वी विल गेट 40,000। सो द लास्ट वन इज द नेट लाइबिलिटी। देखो एप्लीकेशन हमारे पास सेल करने को 80,000 शेयर्स था, बट एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए मिला। एप्लीकेशन सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए मिला। तो बचा हुआ 40,000 शेयर्स तो अंडरराइटर को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो वही हमें फाइनल में मिला कि कौन सा अंडरराइटर कितना शेयर्स सब्सक्राइब करेगा। मिस्टर ए विल सब्सक्राइब विल परचेज सब्सक्राइब 27,200 शेयर्स, बी एंड कंपनी 8,000, सी कॉर्पोरेशन 4,800, giving it to the total of 40,000. So we got application only for 40,000. The remaining 40,000 because the company wants to sell 80,000 शेयर जो सेल नहीं हुआ पब्लिक से, वो अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। सो दिस इज द रेशो बाय वे इंडिविजुअल अंडरराइटर का लाइबिलिटी हमें समझ में आया। विद दिस सम इज डन। So let us do the next sum now. Delta Limited issued 25 lakh equity shares of rupees 10 each at par. So Delta Limited has issued 25 lakh equity shares of rupees 10 each at par. 7 lakh shares were issued to the promoters. So promoters को जो issue करते हैं that we will not consider, and the balance offered to the public was underwritten by 3 underwriters P, Q and R in the ratio of 2:3:4। देखो कभी भी प्रमोटर्स को जो शेयर्स दिया है दैट वी विल नॉट काउंट फॉर अंडरराइटिंग, दैट विल नॉट गेट एनी कमीशन। सो यहाँ पे 25,000 में से 25 लाख में से 7 लाख शेयर्स हम माइनस करके बाकी 18 लाख शेयर्स के बारे में हम ये सब में देखेंगे कि क्या है आगे। लेट अस सी दैट 2:3:4 ये रेशो में बाकी का 18 लाख शेयर्स है उसको 3 अंडरराइटर्स में डिवाइड किया P, Q and R। नाउ फर्म अंडरराइटिंग कितना है 50,000, 60,000 and 70,000 shares each respectively. So total subscription received हमारे पास 18 लाख शेयर्स है सेल करने के लिए, तो सब्सक्रिप्शन मिला कितना 13,88,000 shares including marked application and excluding firm underwriting. So total subscription में marked applications included है but firm underwriting is not included. So unmarked तो रहेगा, तो marked कितना है, marked applications were as follows, it is given P का 3 लाख, Q का 3,50,000 and R का 4,50,000. Unmarked and surplus applications to be distributed in gross liability ratio. Ascertain the liability of each underwriter. तो यहाँ पे let us do the sum now. They have not given कि बेनिफिट अंडरराइटर्स को मिला है, फॉर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट अंडरराइटर को मिला है कि नहीं, दैट इज नॉट गिवन हियर इन द सम। तो वी हैव टू अज्यूम दैट एंड डू कि क्या है। सो वी विल अज्यूम बेनिफिट गिवन टू अंडरराइटर, बेनिफिट ऑफ फर्म
underwriting given to individual underwriters। हम ये अजम्पशन के साथ करते हैं, जैसे हमने आज प्रीवियस सम किया, वही अजम्पशन में हम ये वाला सम भी करेंगे। जो बेनिफिट मिलता है फर्म अंडरराइटिंग का इंडिविजुअल अंडरराइटर को, तो पहले फर्म अंडरराइटिंग को लेस करते हैं, फिर लास्ट में ऐड करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस सम। Particulars basis, there are 3 underwriters and total. So what we will do, particulars basis P Q R and total. So here gross liability, it is given na, not given but ratio is given 2:3:4। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 25 लाख इक्विटी शेयर्स था इशू करने के लिए, बट 7 लाख तो हमने किसको इशू किया, प्रमोटर्स को। तो उसको छोड़ के ग्रॉस लाइबिलिटी कितना रहेगा, 18 लाख। वी कैन नॉट कंसिडर द शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स फॉर ग्रॉस लाइबिलिटी। वो तो ग्रॉस लाइबिलिटी हमने कैसे फाइंड किया, 25 लाख माइनस जो 7 लाख था शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स, वो माइनस किया। सो हमें मिला 18 लैक्स। अब 18 लैक्स को ये रेशियो में डिवाइड करो, 2+2:3:4 पर, तो 2+3+4 इज 9। सो 18 लाख को 2/9 करो, 18 लाख को 2/9 करो, 18 lakh into 2/9, how much you are getting, 4 lakhs। and 18 lakh को 3/9 करो, you will get 6 lakh। and 18 lakh को 4/9 करो, you will get 8 lakhs। So we got the gross liability। कौन से अंडरराइटर को कितना मैक्सिमम शेयर्स सेल करना है, that we have got। now what we will do, इसमें से लेस करेंगे marked applications which is given in the question। marked applications is given, कितना है मार्क्ड एप्लीकेशन, सी का P का है 3 lakhs, Q का है 3,50,000 एंड C का है 4,50,000। add all the three, how much you are getting, 3 lakh, 3,50,000, 4,50,000, we are getting 11 lakhs। सो हमें क्या मिलेगा, लेस करके बैलेंस मिलेगा। कितना बैलेंस है, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 6 लाख माइनस 3,50,000 इज 2,50,000, 8 lakh minus 4,50,000 is 3,50,000। ऐड करेंगे तो वी गेट 7 लाख, या तो 18 लाख में से 11 लाख माइनस करो, देन ऑल्सो यू विल गेट 7 लाख। अब इसमें से हमें लेस करना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस क्या बोला है यहाँ पे,
unmarked applications is equal to जो हमें टोटल एप्लीकेशंस मिला है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग but including marked applications माइनस इसमें से हम मार्क्ड एप्लीकेशंस निकाल देंगे तो अब हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशंस मिल जाएगा इंक्लूडिंग मार्क्ड। देखो यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला 13,88,000 इंक्लूडिंग मार्क्ड बट एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। I'll highlight this. So इसमें हमें पता चलता है कि 13,88,000 में से मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडेड था 11 लाख, वो माइनस कर देंगे तो हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन मिलेगा 2,88,000। सो ये 2,88,000 को हम 2,88,000 को लेस करना है। 2,88,000 को कौन से रेशो में? रेशो है 2:3:4। तो ये रेशो में मतलब 2,88,000 को इंटू 2/9 करो। 2/9 you will get 64,000। सेम वे 2,88,000 को 3/9 ये 9 कैसे आया? 2 + 3 + 4 is 9। तो ये रेशो में हमें 2,88,000 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे मिलेगा 96,000। सेम वे 2,88,000 इंटू 4/9 करो you will get 1,28,000। So now what you will get? You will get the balance। बैलेंस कितना आएगा? 36,000 and 2,50,000 minus 96 1,54,000 then 3,50,000 minus 128 222 2,22,000। ये तीनों को ऐड करो you will get 4,12,000। अब क्या करना है? ये सब होने के बाद हमें लेस करना है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग बेनिफिट दे रहे, पहले लेस बाद में ऐड। कितना है? ये तो गिवन है। फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन। कितना है? इज गिवन 50,000 हियर। फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन हियर। कितना है फर्म अंडर राइटिंग? 50,000 60,000 and 70,000 ऑलरेडी गिवन। तो कितना होता है ऐड करने पे? 50 60 70 दिस कमिंग टू 1,80,000 माइनस करो you will get the balance। कितना ये नेगेटिव फिगर मिलेगा? 14,000। फिर इधर मिला 60,000 माइनस करो 94,000 1,54,000 माइनस 60 222 माइनस 70 1,52,000। अभी यू विल गेट माइनस करो 4,12,000 माइनस 1,80,000 यू गेट 2,32,000। ये तीनों को भी ऐड करते तो यही मिलता है। ये नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड करके 94 1,52,000 ऐड करके 14,000 माइनस करेंगे तो भी हमें सेम अमाउंट आएगा। लेस अभी किसी का नेगेटिव होता है तो क्रेडिट ऑफ
पी एडजस्टेड, किसी का नेगेटिव होता है तो उसको हम एडजस्ट करते हैं, तो कौन सा रेशो, पी का छोड़ के पी का छोड़ के 3:4 बचेगा। तो 3:4 रेशो में 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। 14,000 को 3 डिवाइड बाई 7 होएगा ना, 3 + 4, 3 डिवाइड बाई 7 करो 14,000 को, यू विल गेट 6,000 एंड 4 डिवाइड बाई 7 करो, यू विल गेट 8,000। सो यहाँ पे प्लस माइनस वैसे ही 0 हो जाएगा, तो हमें फिर से बैलेंस आ जाएगा। कितना, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 88,000, दिस बिकम्स 1,44,000 and this will be the same amount, करेक्ट। अब माइनस तो कर लिया फॉर्म अंडर राइटिंग को, अब क्या करना है, ऐड करना है लास्ट में, पहले माइनस फिर लास्ट में ऐड। तो ये तो जो गिवन है वही लेना है फॉर्म अंडर राइटिंग। कितना है फॉर्म अंडर राइटिंग, 50,000, 60,000 एंड 70,000 एंड 70,000, तीनों का टोटल है 1,80,000। जब ये सब ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा नेट लाइबिलिटी। हाउ मच इज द नेट लाइबिलिटी, 50,000, 88 + 60 is 1,48,000, 144 + 70 is 2,14,000 and 232 + 1,80,000 is 4 lakh. How much are you getting? Add 232 plus 180, we get 4,12,000. 4,12,000. इसके साथ हमें ये सब में भी नेट लाइबिलिटी मिल गया and the sum is done. The sum is done. The sum is done. Thank you very much everyone.